Okay, fine. So in the last class, we already started that unit number four. So in that unit number four, we have covered that here arrays and pointers and pointer in the and we have covered that here. One more thing is that relation between today I'm going to cover that relation between array and pointers, and the topic are the left only that here dynamic allocation and structure and union. In the next class, we will discuss this thing. And so you have a link list and this all those things also be there. Okay, so I'll be go for the directly that topic of that your topic. So I will skip this all the slide because last time also we discussed this thing. So what is our topic, then we'll try to cover the topic only. So today we are going to discuss about that here array with that pointer. Array pointer arithmetic, and we can perform that here in this arithmetic pointer arithmetic operation, and array with pointer arithmetic with array, memory allocation functions, and static and dynamic memory allocation. This thing also I will try to cover this topic also. Okay, so first we go for that how to use that array. So what is that objective of that here pointers? So these are the objective of this pointer. There is a to understand the relation between that here array and pointer, and to understand the designing the concept behind the pointer arithmetic, and write the program to array and pointer arithmetic, and better to understand designing the passing the array to the function, how to pass that array with that function, and to understand that your C complement implementation of dynamic memory allocation, how to write the static and dynamic memory allocation, how to understand and implement like drag array and array of this pointer. Okay, let us see that here one by one topic. So first, what is in here? First, array. How we have to use that array? Array is nothing but now we want to do that here. We have to use that array in that pointer constant. The name of that array is a pointer constant. First thing, okay, to first element because the array name is pointer constant. So in that array only that we have to specify that here pointer constants. Okay, how to specify, how to declaration this time, this thing is, let us see in the next slide. Since the array name is pointer constant to the first element, the address of the first element and the name of that array with both location and address. Suppose if I write that here example here int asterisk a of 3. So I array to pointer, it is an it represent that here it contain that it pointing to the first element of that here array. A of 0 is pointing, and like that it will be create that array. Now look this thing. This is an array. Okay. So here how many elements are there? Five elements are there. It start from 0 and name. So A is there. A is a name of the array is here what? A. Name of the array is A. A is a pointer content constant, constant to its first element. So first every time the pointer, whenever you design the pointer, the A pointing the first element only, not directly with the second element and third element. तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा एरे के, अगर हम पॉइंटर डिफाइन करेंगे तो let us see that here what there is a same here a and a underscore a, both are similar only. Here a is a pointer, a is what here a is, we are not initialized here but actually you should have to consider here a is a pointer of only pointing the first element. A is a pointer pointing the address of the A of 0, first element, not whole array, not whole array. So this is about that here. Both are similar. If you define that here pointer A, or if you define like that address of A, so is pointing that only first element of that array. The name of the array is pointer constant. It cannot be used at lval, length val. Name of the constant is a array is pointer constant. Okay, it cannot be used in the lval. To access that element, a pointer, the first element can be used instead of use that array. So okay, this is very important. Actually, that you want to access that array, then there should be a pointer to first element. We have to point only the first element of that array only. Then remaining it will be automatically it will be corrected. So here, look that here. This is an example I have that here. Then I have written here small program. Here in that program there is a five elements are there. What are the elements? One array is initialized here, a of 5, and what is the value of that here? Value array 3, 2, 4, 6, 8, 22. So have this is about that. This is array. Then after that here.
So this is about that array. Then what is the first element of that array? A of 0. A of 0 is the first element. The pointer is pointing to the first element of the array instead of pointing to the whole array. So now that here printf percentage d percentage d percentage d, suppose if I write here pointer directly pointer array, so it point to that only single element of that array, single element of that array, the first element of that array को point करता. That's why we get that here this 2, and first a of 0 is here. A of 0 is what? 2. So that's why 2 and 2 printed. Is it clear how to dereferencing of array names? समझ में आ गया बेटा सबको? ये सर जो पॉइंटर का स्टार यूज कर रहे हैं सर वो बताएगा सर. क्या चीज सर ए के आगे जो स्टार यूज कर रहे हैं. ये क्या कर रहा है कि मैं बताया ना कि ये क्या आगे स्टार कर, एरे का नाम क्या है? ये एरे का नाम क्या है? ए है. तो स्टार अगर हम पहले हम स्टार अगर ए लगा देंगे तो ये क्या होगा? पॉइंटर वेरिएबल होगा. पॉइंटर वेरिएबल होगा तो ये क्या पॉइंट करेगा? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है अपना? ए ऑफ 0 को पॉइंट करेगा. तो इसको एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट मतलब इसके जो एड्रेस पे, तो ए ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू रहेंगी उसी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा. यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड दैट ए ऑफ 0 इज इक्वल और स्टार ए बोले तो ये फर्स्ट ऑफ एलिमेंट को पॉइंट करेगा बस. ठीक है. तो इसमें क्या बोलते हैं, जब भी पॉइंटर अगर इनिशियलाइज करते हो तो एरे के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट एरे का जो भी रहेगा उसको पॉइंट करेगा. ठीक है. तो लेट अस सी दैट हियर सम अदर थिंग्स आर देयर. तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, उसको भी हम क्लियर करेंगे. ठीक है. अब जैसे कि आपके पास में एक एरे ले लिया मैंने, एक एरे ले लिया. एरे में क्या क्या है बेटा? 2 4 6 8. ये तो यहाँ तक तो समझ जाएगा. नेम ऑफ द एरे क्या है? ए है. फर्स्ट इंडेक्स क्या है? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4. ये तो यहाँ तक समझ जाएगा. हमने यहाँ पर क्या किया? दो पॉइंटर लिए. देखिए एक क्या है बोले तो, एक तो क्या बोलते ये एरे का है, ए क्या है बोलते एरे का है. दूसरा क्या बोलता हमारे पास स्टार पी है. स्टार पी इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू स्टार पी बोला गया. स्टार पी इक्वल टू ए बोलते हैं कि सीधा डायरेक्ट ये क्या करता है? डिफॉल्ट इनबिल्ट क्या करता है? ए ऑफ 0 को पॉइंट करता है. ए ऑफ 0 को पॉइंट कर रहा है इसके एड्रेस पे. ऐसे बेसिकली क्या इंटरनली एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 बोल के मीनिंग होता है इसका. तो इस एड्रेस पे ए ऑफ 0 के पास में पॉइंट किया तो इसके 2 थी वैल्यू, तो ये 2 प्रिंट कर दिया. और स्टार पी के अंदर क्या होगा? स्टार पी बोले तो भी क्या? ए ऑफ 0 तो ये एज इट इज ये 2 पी हो गया. अगर स्टार पी बोले तो स्टार पी भी हमारे पास ए है, ये बोले तो 2p हो जाता, ये भी 2 हो जाएगा. then like that same thing is that only that there here we declare that here initialize that we have pointer variable, and here we are not initialize that any kind of pointer variable, but here we directly use that here star asterisk a, and here we what type of integer type pointer is it? We initialize that one extra variable. So this is about that here array name as a pointer. Here this is the difference is that the array name as a pointer, whereas here dereferencing of the array name. ये दो डिफरेंस होता है. ये दो चीजें, दोनों के नाम भी मैंने मेंशन किया है. डीरेफरेंसिंग बोले तो सीधा डायरेक्ट हमने यहाँ पर एरे को डीरेफरेंसिंग कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर दिया. अब इसके अंदर क्या बोलते हैं कि एरे को इनिशियलाइज किया और पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, फिर पॉइंटर क्या करा? उस एरे को पॉइंट किया, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट किया, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर एरे नेम एज ए पॉइंटर बोलेंगे. ठीक है. So this is the main important topics are there. Now that multiple array pointers देखते हैं. Now how to access that multiple array pointers? Suppose let us see that here these are the arrays there, and how many elements are there? 5 elements are there. So one initialized pointer is here. The pointer name is that here asterisk p. P is pointing to, now we have to initialize that here. P is pointing to address of फर्स्ट एलिमेंट. सो व्हाट यू गेट दैट हियर एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो ये किसको पॉइंट करेगा? ये किसको पॉइंट करेगा? p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ i बोल तो किसको पॉइंट करेगा? बताओ भाई कोई एक जना. 4 को सर 4 को करेगा, तो इसलिए 4 यहाँ पर आएगा. लेट अस सी दैट. हम यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर यहाँ तक तो समझने को आ गया अपने को. अब बेटा देखिए एक पॉइंटर है, तो फर्स्ट ये एड्रेस ऑफ पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? ये ऑफ 4 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर इसको ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब ए पॉइंट को इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखना, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको. यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, कोशिश करेंगे. परसेंटेज डी ए ऑफ 0 बोल तो क्या आएगा? ए ऑफ 0 बोल तो क्या आएगा बेटा? 2. ए ऑफ 0 बोल तो 2 आ गया. ठीक है.
अब इसके बाद हम ए ऑफ पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 बोले तो हम इसको कंसिडर करेंगे, जैसे पी पॉइंट कर रहा है ए ऑफ आई को पॉइंट कर रहा है, तो इसको कंसिडर करेंगे पी ऑफ 0 ही पॉइंट करेंगे। एवरी टाइम क्या बोले तो जो पॉइंट करता है तो पी बोला गया है, तो ये पी ऑफ 0 ही बोला जाएगा। तो मतलब इसको 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 0 मानेंगे तो इसको ये -1 हो जाएगा, नीचे का +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो माइनस में जाएंगे ऊपर से। जो करंट पॉइंट को बोलेंगे हम यहाँ पर 0 बोलेंगे, करंट पॉइंटर को क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, नीचे जाएगा तो प्लस होगा। तो इसीलिए क्या बोलते पी ऑफ -1 बोला गया, तो हमारे पास आउटपुट 2 आया इधर। फिर स्लैश n किया है, न्यू लाइन पे आ गए, तो ए ऑफ 1 बोले तो 4 आ गया। ए ऑफ 1 बोले तो क्या आना चाहिए अब इधर, ए ऑफ 1 बोले तो क्या आना चाहिए, ए ऑफ 1 तो इसके हिसाब से, ए ऑफ 1 इसके हिसाब से तो फिर 4 आना चाहिए। ये 4 तो ठीक है, अपन ये 4 का देखना, एक बार रन करके देखना इसको, ठीक है। क्योंकि 4 ए ऑफ 1 बोला गया तो डेफिनेटली 4 ही तो आना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर कोई पॉइंटर थोड़े इस्तेमाल किए। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर, इसीलिए इसको इसको एक बार चेक करना, एक बार रन करके देखना कि इसका रिजल्ट क्या आता है। पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझने को आया ना। 2 पॉइंट मल्टीपल एरेज पॉइंटर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि एक क्या किया है कि पहले फर्स्ट पॉइंटर ले लिया पी, और उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा, तो इसको हम बना दिया पी ऑफ 0 बना दिए। पी यहाँ पर जिसको पॉइंट कर रहे हैं इसको पी ऑफ 0 बना, इसके ऊपर जो रहता है वो माइनस में जाता है, इसके नीचे जो जाता है प्लस में जाता है। तो इसके ऊपर जो माइनस में है तो इसलिए बोल के हमारे पास यहाँ पर 2 आया, और ए ऑफ 0 का 2 आया, और इसके अंदर ए ऑफ 1 का यहाँ पर 4 आना चाहिए, और ए पी ऑफ 0 का यहाँ पर 4 आना चाहिए। then your program will be okay. So it's like that we can perform that here. So this is the name of that here. This program is nothing. मल्टीपल एरे पॉइंटर हमने यहाँ पर इसके यूज किया। मल्टीपल एरेस देखिए, एक एरे यूज किया है, ठीक है, एक सिंगल हमने एक एरे अपना खुद का बनाया पी का, एक पॉइंटर से एक एरे बनाया। दूसरा ऑलरेडी हमारे पास एक एरे है, तो ए का जैसे दूसरा एरे मल्टीपल कैसे किया है कि सेकंड एलिमेंट को हम मतलब फर्स्ट वन एलिमेंट को हमने एक्सेस किया है, तो उसको 0 बना दिया पी ऑफ 0। उसके ऊपर जो रहेगा वो माइनस में आएगा, इसके नीचे जो रहेगा प्लस में आएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर इसको बोलते हैं हम यहाँ पर मल्टीपल एरे एक्सेस बोलेंगे। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर पॉइंटर अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे एरे और पॉइंटर यूज करके, ठीक है। बिसाइड द इंडेक्सिंग, प्रोग्रामर यूज अनदर पावरफुल मेथड ऑफ मूविंग थ्रू दैट एरे एंड पॉइंटर अर्थमेटिक, ठीक है। एरे को यूज करते हुए पॉइंटर अर्थमेटिक करना है, पॉइंटर का इस्तेमाल। पॉइंटर अर्थमेटिक ऑफर pointer arithmetic offer a restricted set of arithmetic operation for manipulation address in pointers। तो अब देखिए भाई पॉइंटर अर्थमेटिक ऑफर्स क्या करते हैं, सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन मैनिपुलेशन करना है। अब कैसे करते देखिए, एक तो देखिए पॉइंटर एट 1 डायमेंशनल एरे के अंदर यूज करेंगे, और पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर्स के अंदर हम यूज करके करेंगे यूजिंग अर्थमेटिक पॉइंटर अर्थमेटिक एंड पॉइंटर एंड 2 डायमेंशनल। ये देखना है, तो इसके बेस पे हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। एक पॉइंटर p है, ठीक है, p प्लस n, p प्लस और माइनस n कर दिया, इज ए पॉइंटर टू द वैल्यू ऑफ n एलिमेंट। तो फर्स्ट हमारे पास a है, a के अंदर 2 है, p माइनस 1 किया, p माइनस 1 यानी क्या होगा ये p माइनस 1, इसको हम अगर हम यहाँ पर p बना दिए, सुनो इसको p बना दिए, अगर हमारा पॉइंटर p जो है हमारा ये बना दिया, p बना दिए, तो ऊपर का क्या होगा, ऊपर का क्या होगा, फर्स्ट ऊपर का एलिमेंट p माइनस 1 होगा, नीचे के एलिमेंट जितने भी होंगे क्या होंगे p प्लस 1 होंगे, इसलिए p प्लस 1 होगा, p प्लस 2 होगा, p प्लस 3 आ गया। तो ये तो a हो गया, तो ये 1 2 3 4। हाँ पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो। तो जो जिसमें p -1 है, हम उसको p नहीं बना सकते क्या? नहीं, उसमें अगर p बना सकते तो p बना देंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उसने एड्रेस ऑफ a ऑफ i बोला है, ओके इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ i बोला, तो क्या करेंगे हम, p किसको बनाएंगे, a ऑफ i को तो बनाएंगे ना, यस सर a ऑफ i को तो बनाएंगे ना। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाया। इसके अकॉर्डिंग भी क्या है बोलते, हमारे पास पॉइंटर p है, p प्लस प्लस और माइनस 1 बोले तो क्या है, ये देखो एक p पॉइंटर है, ये p पॉइंटर हो गया, रिमेनिंग क्या होंगे प्लस और माइनस n होंगे।
तो इसलिए हो गया कि हम इसको अगर p मान के चल रहे तो उसके ऊपर का क्या होगा, p माइनस वन हो जाएगा, उसके नीचे के क्या होंगे p प्लस वन, p प्लस टू, p प्लस थ्री, मतलब p ऑफ वन, p ऑफ टू, p ऑफ थ्री। इसके अंदर क्या रहेगा, a ऑफ जीरो है फर्स्ट एलिमेंट, a ऑफ वन, a ऑफ टू, a ऑफ थ्री, a ऑफ फोर। तो इस तरह से ये एरे के एलिमेंट, ये सिंपल एरे है और दिस इज नथिंग बट अनदर एरे है, अनदर पॉइंटर एरे, पॉइंटर एरे, ये इसको पॉइंट किया, ये पॉइंटर एरे, ये सिंपल एरे, ये डिफरेंस है देख लीजिए। दिस वन इज सिंपल एरे, ए ऑफ वन, ए ऑफ जीरो ही है। ये क्या है हमारे पास, पॉइंटर एरे। पॉइंटर एरे के अंदर हमने इसको पहले इसको जीरो माना, फिर इसको फर्स्ट एलिमेंट माना, फिर इसके ऊपर का माइनस वन होगा, इसके नीचे के प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। इस तरह से हमारे पास पॉइंटर अर्थमेटिक बोलते हैं इसे बोलेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक बोलेंगे। ठीक है, let us see some more examples here. So here a is pointing 100 लोकेशन पे, अपने पास मेमोरी लोकेशन क्या है इसका 100 है। a प्लस वन कितना है, मतलब इसका एरे, एरे के अंदर क्या होगा कि 1 1 बाइट ही ले रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर टाइप ये 1 1 बाइट यहाँ पर ले लिए। 1 2 जो भी एड्रेस मेमोरी एक्सेस ये ले लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर ये 1 1 बाइट क्यों लिया हमने, 1 1 बाइट इसलिए लिया क्योंकि कैरेक्टर था इधर। कैरेक्टर कितने बाइट एलोकेट करता है, 1 बाइट एलोकेट करता है, तो इसलिए बोल के हमने ऊपर 100 लिया, फिर इसके बाद में 101 लिया, फिर इसके बाद में 102 लिया। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए प्लस वन बोलेंगे तो क्या होगा, ए ऑफ वन होगा, ए प्लस टू बोले तो क्या होगा, ए ऑफ टू होगा। तो ये एम्प्टी इसके अंदर। नेक्स्ट आप इस एरे को देखो, आप इंटू बी ऑफ थ्री लिखेंगे। इंटू बी ऑफ थ्री बोले तो क्या है, बोले तो बेसिकली ये जो है, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर डाटा टाइप विल बी चेंज, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो हियर सो बी इज इक्वल टू यहाँ पर 100 होगा, बी प्लस टू, ये जो भी अगर लेना है तो ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। फ्लोट है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर इन्होंने देखो यहाँ पर भी कुछ अलग लिया है। तो ये सी प्लस वन, सी प्लस टू, दिस इज अबाउट द पॉइंटर अर्थमेटिक एंड डिफरेंट टाइप से डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप से। ये यहाँ पर इसके अंदर मैंने ये चीज बताया, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट ओनली फॉर इंस्टॉलेशन, ओनली मेमोरी इज देयर along with the address and along with कहाँ से इसका वेरिएबल, इसको स्टार्ट करें। अब देखते हैं कि हमारे पास ये फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आते हैं, परसेंटेज पॉइंटर a प्लस वन एंड a ऑफ n, a ऑफ जीरो, a ऑफ वन, a ऑफ थ्री, ये तो क्या है आपके पास, इट इज इक्वल टू व्हाट हियर, इट इज इक्वल टू a ऑफ पॉइंटर प्लस जीरो। ठीक है, a ऑफ पॉइंटर a प्लस जीरो मतलब a ऑफ जीरो। अगर हम इसको a ऑफ वन को अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं, अगर पॉइंटर एरे को पॉइंटर में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, पॉइंटर a प्लस वन बोले तो क्या है, पॉइंटर a प्लस वन बोले तो a ऑफ वन ही होगा, पॉइंटर a प्लस टू बोले तो क्या होगा, a ऑफ टू होगा, पॉइंटर a प्लस थ्री बोले तो क्या होगा, a ऑफ थ्री, पॉइंटर a प्लस बी, a ऑफ फोर। तो अब देखिए यहाँ पर तो लोकेशन तो ये एक ही आ रहे हैं, तो छोड़ो, ये सिंपल आ रहे हैं। तो दिस इज अबाउट दैट हियर एक्सप्रेशन ऑफ दैट। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये दोनों भी आइडेंटिकल है बोल के हम दिखा रहे हैं, the pointer a plus n and a of n. So here a of n and a of 1, the both are the similar only, that's why we written that here there is a relation between that, both are similar only. Okay, so dereferencing array pointers is there. So this is a simple concept of that. Two expressions are the equivalent are there. Okay, so now we go further here, some of the valid arithmetic operation. Suppose if p plus 5 I am written here, p plus so is it, तो इसके अंदर क्या करना है, एक मिनट है, ये p plus 5 and 5 plus p and p minus 5. So here suppose that here nothing is there here in this, there is a relation between that here. So here p plus 5 बोला तो valid है, which one, p plus 5 means suppose only there is not we are not initialize at any kind of pointer. Suppose if you initialize that pointer, then p of 5 is this one, and p plus 5. So I think this is not is too important, but actually that long form of this only just two things are there. Pointer equal to none, so we can write here short form here like not PTR. PTR is nothing but PTR जो भी रहता है पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर अगर नल है मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, नॉट पीटीआर बोल के लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी इफ पीटीआर लिखेंगे। दिस इज नथिंग इज देयर, ओनली जस्ट यू गो टू दिस वन इज व्हिच वन इज वैलिड और नॉट, इट डजंट
it is not important. So focus on this thing. Some of the smallest, find the smallest element. Suppose that array is there 32, 8, and these are the after initialization. These 3 pointers are there. How many pointer? SM, PSM, PWalk, P last. These are the elements are there. Now the after the first iteration, then what we have to do that here. First array is there 32, then after that is both are pointing this location only, and another one is this again we can point is like that. But actually what is the logic is there behind that? Let us first find out that what we are doing that here. We are finding that your smallest value. Okay, finding the smallest value. So first this one is that initialization part. Agree? This is nothing is there, one array. There are the 5 elements are there. In that 5 element, smallest is that here 8. The 3 is first SM is nothing but here smallest if track is the smallest value. Okay, we are finding this PSM is the smallest find करने के लिए. फिर वॉकर क्या बोलते हो यहाँ पर, मूव द फर्स्ट स्मॉलेस्ट. ये क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, लास्ट वाला ये क्या है, कोई भी वैल्यूज दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो फर्स्ट इसके अंदर मेरे को इस एरे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंटर कौन सा होता है, 8 है. 8 वैल्यू है. तो अब यहाँ पर हमने इसलिए दोनों को हमने यहाँ पर इसको पॉइंट किया, 8 को पॉइंट किया. फिर सेकंड इटरेशन में क्या बोले तो हमारे पास वॉक क्या करेगा, फिर मूव करेगा. मूव कर कैसे करेगा, ये नेक्स्ट पॉइंटर को मूव करेगा. फिर इसके बाद में फिर फाइंड करेंगे सेकंड इटरेशन कौन सा है. सो ये इसमें दिस नॉट टू मच इम्पोर्टेंट एक्चुअली. दिस इज नॉट विल गो इतना डीप में भी हमें जाना नहीं है, क्योंकि इतना डीप में तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पॉइंट किया. तो फिर उसके बाद में फिर ये हमारे पास फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो फाइंड कर लिया था. फिर उसके बाद में वॉक फिर नेक्स्ट इससे कंपेयर करता है. ये 8 और 4 से कंपेयर कर रहा है कि पहले तो यहाँ पर क्या करेगा कि 8 और 4 से कंपेयर करेगा. अगर 8 स्मॉलेस्ट है तो वो वहां पर ही रुकेगा. फिर ये वॉक को जो है ना मूव करेगा, ये पॉइंटर को मूव करेगा. मूव करने के बाद में 22 पे पॉइंट किया. 22 पे पॉइंट किया. फिर इसके बाद में फिर 8 और 22 को कंपेयर कर रहा. 22 को कंपेयर कर रहा. फिर से इसके बाद में नहीं, 8 स्मॉलेस्ट ही है तो 8 के पास ही 8 ही रुका हुआ है. और ये जो है वॉक क्या है उनका पॉइंटर, फिर नेक्स्ट मूव करेगा. मूव करने के बाद में क्या, लास्ट एलिमेंट को दोनों को पॉइंट करेंगे. फिर चेक करेंगे कि ये लास्ट एलिमेंट है क्या बोल के चेक करेंगे. बस इतना ही है और कुछ नहीं है. इसी तरह से हमने फाइंड कर रहे हैं कि पी ऑफ लास्ट इक्वल टू एरे प्लस साइज ऑफ एरे साइज माइनस 1. एरे साइज कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5. 5 माइनस 1 4, 4 प्लस एरे. तो ये जो ये कैलकुलेशन कर लेंगे. फिर इसके अंदर फर्स्ट ये पीएसएम के अंदर क्या करेंगे कि हम एरे डाल देंगे. वॉक के अंदर क्या, एरे प्लस 1, मतलब फर्स्ट पॉइंटर क्या करेंगे कोड के हिसाब से. देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पीएसएम किसको पॉइंट कर रहा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा. तो इसलिए एरे का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट पॉइंटर ARY को, ARY का मतलब क्या होता, पॉइंटिंग टू फर्स्ट A ऑफ 0 को, मतलब ARY ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता. तो अब इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 32 है. 32 को जो है हमने यहाँ पर इसमें 32 डाल रहा है. P ऑफ Y क्या होगा. तो अब इसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 8 है. तो अब फर्स्ट एलिमेंट और फिर अब क्या नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, अगर यहाँ पर वॉक क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 8 लेस देन इक्वल टू लास्ट को कंपेयर कर रहा है. अगर है क्या देखता, अगर नहीं है, कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इधर आ जाएंगे. पी ऑफ वॉल किस लेस देन यहाँ पर कंपेयर करेंगे, दोनों के पॉइंटर्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे. जैसे कि यहाँ पर दोनों के वैल्यूज को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर इधर ये दोनों को कंपेयर कर रहे थे, ये दोनों को कंपेयर कर लिया. फिर इसके बाद में फिर हमारे पास अगर कोई छोटा होता है तो फिर उसके बाद में वो पॉइंटर मूव होता है. अदरवाइज नहीं तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन दिस सिंबल कोड ओनली. So this is about that here. So now we have to convert this program into that logic into that program. There are the 10 elements I taken. Same logic is there. I will not go by all this explanation. Same thing I am written here. First array is pointing the first element. A of 0, A of 1 को find करता है. Then इसके बाद में फिर ये max जितनी array है उसके उतने एलिमेंट को कंपेयर करता है. वॉक और एंड फाइंड कर लिया. फर्स्ट वॉक क्या करंट पॉइंटर है. करंट पॉइंटर अगर हमारे पास एंड है क्या देखता, नहीं है तो फिर मूव करते रहता है वॉक. बस इतना ही है. फिर इसके बाद में हमारे पास लास्टली हमारे पास फाइंड होता है 1 फाइंड होता है. तो ये देख लीजिए आप लोग, ये बहुत सिंपल है. बेसिकली बेस्ड ऑन दिस लॉजिक ओनली वी रिटर्न दिस प्रोग्राम. लॉजिक इज वेरी सिंपल. बेस्ड ऑन ओनली द कॉन्सेप्ट इज दिस वन ओनली.
you understand this concept, then you can easily write this program. Nothing is there. ठीक है. Now pointer and two dimensional array, let us consider the two dimensional array. अब हमने यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे, a of I j, then we array element can access pointer and so here हम पहले क्या लिख रहे थे सिंगल डायमेंशनल के अंदर स्टार a प्लस आई लिख रहे थे. अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, दो जे भी आ गया क्योंकि हमारे पास रो और कॉलम्स है, तो इसलिए स्टार a प्लस आई प्लस जे. So this is about the inner of the inner braces is for this one is for rows and this one is for columns. Outer is for columns. So here first you write that here in row and column. You can specify that here row and column. So how many columns are there? So column same thing is there. So this is about that here. Pointer with two dimensional array. तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. And pointer and array passing the passing an array to an function. How to pass that array to the function? ये तो बहुत सिंपल सा है, लास्ट टाइम भी हमने देखा है इसको, इसके अंदर कुछ है नहीं. जैसे कि हमारे पास एक array है, अब इस array के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल पॉइंटर्स है, इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी साइज है, इसकी साइज यहाँ पर 5 है. तो वेरिएबल्स आर मल्टीपल एरेज बाई 2. ठीक है. बाई 2 मतलब ये होगा कि जैसे कि हमारे पास जो भी मल्टीपल एरेज है, दो पॉइंटर्स को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. जैसे एरे है, दिस वन इज पॉइंटिंग, दिस वन इज, विल टेक सम एग्जांपल देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो हियर pointer with array and size we specify that array and walk. Then after that here array same thing is written, same program is there, nothing is there. तो इसको भी आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वन डायमेंशनल के अंदर था ये, this one is for one dimensional. Okay, now here this one is for two dimensional, multiple arrays are there. So that's it. And next topic is that here we go for the next topic also because we have a time. Memory allocation functions. Memory allocation function, the C gives the two choices when we reserve the memory allocation, and one is a memory users and static memory allocation and dynamic memory allocation and memory allocation function releasing memory allocation. ये चार टॉपिक आपके हैं भाई जो सिलेबस में दिया गया है. स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है, तो कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे डी एलोकेट करेंगे, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे. इसके अंदर स्टैटिक कैसे होती है, डायनेमिक कैसी होती है, ये भी देखना है. तो अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, मेमोरी एलोकेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज दैट हियर स्टैटिक, अनदर वन इज द डायनेमिक. तो इन केस ऑफ दैट हियर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू प्रोग्रामिंग मेमोरी एंड डाटा मेमोरी. मेमोरी को हमेशा हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी. प्रोग्राम मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी का यूजर्स मेन फंक्शन और ऑल मेन एंड ऑल कॉल फंक्शंस, जितने भी कॉलिंग फंक्शंस होते हैं वो मेन फंक्शंस है, वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आते हैं. प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जितने अगर सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन एक मेन यूज हुआ है, ठीक है, आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया, कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज हुआ, दैट इज कम, ये सारे प्रोग्राम मेमोरी के अंदर थे. डाटा मेमोरी के अंदर क्या होता है, बोलते हैं परमानेंट आइडेंटिटी डेफिनेशन, दैट ग्लोबल डाटा और कॉन्स्टेंट्स लोकल डिक्लेरेशन एंड लोकल डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक डाटा मेमोरी लोकेशन. तो भाई देखिए इसके अंदर डाटा मेमोरी लोकेशन में क्या होता है कि परमानेंटली स्टोर डेफिनेशन, जैसे कि आपके पास ग्लोबल डाटा मतलब हम लूप के मेन फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेरेशन किया, या कोई कांस्टेंट हमने डिक्लेरेशन किया, क्या हम कोई लोकल डिक्लेरेशन किया, क्या हमने कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया, तो ये सब सारी चीजें डाटा मेमोरी लोकेशन के अंदर आते हैं. प्रोग्राम मेमोरी के अंदर मेन और ऑल अदर फंक्शंस आते हैं. ऑल फंक्शंस आर लोकल एंड ग्लोबल आर स्टोर इन द स्टैटिक मेमोरी. स्टैक मेमोरी के अंदर बोलते हैं हम यहाँ पर. हिप मेमोरी के अंदर को केवल हिप को ही हम यहाँ पर बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं. एक हिप क्या होता है ये भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको. It is memory pool. It is the memory pool. Memory is allocated when the requested memory allocation function. So basically, memory is divided into that here two part. One is that memory, program memory, data memory. In the program memory, it can use that memory, main or all other function. In data memory, data types, declarations, dynamic memory allocation, constants, global data, that all स्टैक मेमोरी किसको बोलते हैं कि जितने भी फंक्शंस हमारे पास यूज होते हैं या लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, वो सारी चीजें स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. और अनयूज मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं हम यहाँ पर हिप मेमोरी. हिप मेमोरी इज यूज
इज अनयूज मेमोरी एलोकेशन। मतलब हीप मेमोरी किसको बोलते हैं, जो मेमोरी एलोकेट नहीं किया है, मतलब मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस छूट जाती है, तो उसको बोलते हैं कि हम यहाँ पर हीप मेमोरी एलोकेशन को हम यहाँ पर उसको यूज करते हैं, अनयूज को यूज करके उसको हीप एलोकेट करते हैं। If the memory is full, that memory is allocated when the requested memory allocation function. So here, this is about that here. What I'm trying to say that here, this is about that your complete memory. In that complete memory, the program memory, the main functions and different all other functions, heap and stack, and these all are data memory. We refer this memory allocation only in this role. Pointers के थ्रू ही हम यहाँ पर मेमोरी को allocate कर सकते हैं. Static memory is required declaration and definition of memories specified source program. सोर्स प्रोग्राम का जितना भी आपका डेफिनेशन डिक्लेरेशन वो स्टैटिक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। नंबर ऑफ बाइट्स कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम जब एग्जाम कर रहे तो उसके जो अंदर हम लोग हाँ सिस्टम फॉर वॉइस यूज करते हैं प्रिंट एफ, तो वो भी स्टैक में ही होता है। हाँ वो भी स्टैक में होगा, वो भी स्टैक में होगा, मतलब जितनी लाइन लिख रहे हैं वो सारी स्टैक वाइज सारी स्टोर स्टैक होंगी। में ही होती है। ठीक है, तो अभी ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है कि जैसे कि हम एलोकेट किया रिलीज भी कर रहे हैं, मतलब उसको एलोकेट किया फिर से रिलीज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। जैसे तो अनलाइक दिस स्टैक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी है नो आइडेंटिकल एसोसिएट, मतलब दोनों में कोई चीज डिफरेंस नहीं है। तो एक्सेस द डायनेमिक मेमोरी लोकेशन वी हैव टू यूज ए पॉइंटर। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर यूज होता है, और हमारे पास ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के अंदर हम यहाँ पर तो मेमोरी को एलोकेट करेंगे, फिर बाद में रीलोकेट करेंगे। रीलोकेट मतलब मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं, मतलब एक स्पेस एलोकेट किया है फिर इसके बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक मेमोरी इसलिए तो डायनेमिक नाम दिया गया है, मतलब उसको इरेज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए डायनेमिक मेमोरी। स्टैटिक यानी कि फिक्स होती है, फिक्स स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है, फिक्स होता है। यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग, मतलब कि हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो मेमोरी यूज हो जाती है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, यू अच्छा कैन ये पूछा था नॉट। तो डायनेमिक का तो स्पेस बड़ा होता है, जब स्टैक भर जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे डायनेमिक को। डायनेमिक का स्पेस जो है सो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब यानी बहुत कि हमारे पास जितना चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, जितना हम यहाँ पर दे सकते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक का क्या बोलते हैं, एक बार आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया है तो वो मेमोरी यूटिलाइज कर लेता है, फिर इसको हम यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। तो मतलब कोई स्पेस में लिमिट। रैम में जैसे बोलते हैं, देखो हमने स्टोरेज है हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर स्टोरेज में से हमने क्या बोलते हैं इतना स्पेस यूज कर लिया तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, उसको रिलीज नहीं कर सकते, तो वो जाके डाटा स्टोर होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। जो भी आपने अगर एरे ऑफ ए 20 इनिशियलाइज किया, वो 20 जाके वो 20 एलिमेंट्स वो स्टोर कर देता है, वो स्टैक के अंदर स्टैटिक मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, वो 20 एलिमेंट का स्पेस यूज कर लेगा, चाहे आप यूज करो या ना करो। डायनेमिक मेमोरी के अंदर क्या रहता है कि हीप एलोकेशन होता है, उसके बेस पे क्या होता है हम एक मेमोरी को एलोकेट करते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको वापस यूज भी कर सकते हैं। तो यही तो मैं बताया था कि जो अनयूज मेमोरी है उसको हम वापस हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, इसके अंदर पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, थ्योरी है थोड़ा सा देखो और कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर और भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लोकल डिक्लेरेशन हमने किया भाई इंट एक्स है, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई है, स्टैक के अंदर स्टोर कर दिए। स्टैक के अंदर स्टोर करने के बाद में स्टैक क्या होता है मैं बताऊंगा, इसलिए तो मैं पहले स्टैक और ये बताना चाहिए था, तभी जो आप लोग इजीली समझने आता है। ठीक है, टॉप ऑन द स्टॉप ये सब ये है। ठीक है, तो ये एक एरे इनिशियलाइज किया है, फिर बाद में एरे के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये जाके स्टैक के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब लोकल डिक्लेरेशन इन एक्स यहाँ पर क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। ये जो फंक्शन यूज होता है मेलॉक, मेमोरी एलोकेशन लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन होता है, एम फॉर मेमोरी एलोकेशन होता है। तो एक मेमोरी एलोकेट कर रहा है एक्स के नाम से, एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये जो है मेमोरी को एलोकेट किया, दैट इज नथिंग बट हिप कॉन्सेप्ट। जो मेमोरी को एलोकेट करने के बाद में फिर अब इसके बाद में अब यहाँ पर इस मेमोरी को हमने एक एरे लिया है करके एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ये इसी का ही है। तो एक सिंगल एलिमेंट है, ये दो अलग अलग एग्जांपल है, दिस वन इज सेपरेट एंड दिस वन इज सेपरेट। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज वन एग्जांपल and this is another example because both are different declaration. This index here, index here, so here also be the different example. Here one element I have to allocate it, and here array to calloc is also be used to allocate the memory. तो अब ये कैलॉग क्या करता है कि यहाँ पर
इसको पॉइंट कर दिया, मेमोरी को एलोकेट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, सिंपल 3 क्वेश्चंस में एग्जाम में आ सकता है। और दोनों का कुछ सेम नहीं ही है। है केलॉग। हाँ, आप बोलिए बेटा। फिर मेलॉक और केलॉग में अंदर क्या है फिर? मेलाक और केलॉग में क्या है बोले तो देखो, दोनों भी ये एरेस के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज करना है, मल्टीपल एरेस के अंदर हम केलॉग यूज करते। और अगर हम सिंगल एलिमेंट अगर हम यहाँ पर की मेमोरी एलोकेट करना है तो मेलाक यूज करते। बोथ आर सिमिलर ओनली, बट एक्चुअली दैट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हम ये देखो पूरे एरे को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर इसको केलॉग यूज किया। एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के एलोकेट करने के लिए मेलॉक यूज किया है। तो दोनों भी यूज कर सकते हैं, आप एक बार देख लेना। कुछ लोग मेलॉक यूज कर सकते हैं, कुछ लोग केलॉग भी यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली केलॉग ये भी हो सकता है कि डीएलोकेशन करने के लिए भी होता है। एक फ्री बोल के रहता है, इसके अंदर मेलॉक होता है, केलॉग होता है। तो एक बार इसको हम पढ़ाएंगे, जब स्टैक में पढ़ाएंगे तो जब आपको समझने को आ जाएंगे। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर और थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते, कहीं अगर छूट गया तो देख लेते। 4 memory management functions are used for dynamic memory. 3 of them are malloc, kelloc and reallocate are memory allocation. देख लो भाई, अब क्लियर हो गया तुम्हारे को इस स्टेटमेंट से? ये जो मैंने लाइन लिखा है, 3 ऑफ देम, ये तीनों फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन, मेलॉक, केलॉक एंड रीलोकेशन। इसके डिफरेंस देख लेना। और फोर्थ वाला क्या है बोलते हो, मेमोरी रिटर्न विच इज नो नीडेड। ये भी एक है, पर इसको भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सभी फंक्शंस किसकी लाइब्रेरी में चलते, stdio lib.h करेंगे, तभी जो है सो ये फंक्शंस वर्कआउट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फंक्शंस वर्कआउट नहीं करेंगे। दिस फंक्शंस नेम इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। ये क्या है, स्टैंडर्ड लिब फाइल, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है। Okay, we will go for that only for theoretical concept, because we will not go for that here totally very deeply, because this is for only for understanding purpose. What is the difference between dynamic memory location, static memory location, what are the functions are used in case of memory locations? ये चीज हमें बताना था, हमने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सब चीजें देखो, malloc, kelloc and real lock है ना, and this one is a free is used for deallocate the memory, मतलब मेमोरी को डिलीट करना, जो आपने एलोकेट किया था ब्लॉक को, उसको डिलीट करने के लिए फ्री बोला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, देखो मेमोरी एलोकेशन में फ्री मेंशन नहीं किया, मेमोरी डी एलोकेशन में फ्री आता है। ओके फाइन, मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे, तो मेमोरी एलोकेशन का मेमोरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई दैट पैरामीटर। देखिए कोई भी अगर हमारे पास जो है, अगर क्रिएट करना है वेरिएबल साइज, जैसे कि ये साइज ऑफ इट एंड साइज, तो साइज ऑफ इट इज डिफाइंड, क्या बोलता है हमारे पास कि एक हेडर फाइल को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर हेडर फाइल्स यहाँ पर इसके अंदर यूज होते हैं। ओके, लेट अस सी, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दैट हियर। तो फर्स्ट पार्ट वी आर सेइंग द malloc फंक्शन एलोकेट द ब्लॉक ऑफ मेमोरी। क्या करता भाई, ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी को, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी के ब्लॉक को जो है एक ब्लॉक को मतलब एलोकेट करता है, दैट कंटेन नंबर ऑफ बाइट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इट रिटर्न द पॉइंटर टू द टाइप वाइड से ही हम यहाँ पर इसको रिटर्न करना है। फर्स्ट हम 100% इसके अंदर वाइड लिखना पड़ता है। फर्स्ट बाइट ऑफ दिस एलोकेट द मेमोरी इवन दो मेमोरी इज नॉट इनिशियलाइज। तो फर्स्ट एक मेमोरी को मतलब ये मैलॉक लिखते हैं कि इवन मेमोरी इनिशियलाइज नहीं भी किए तो फिर भी क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेट कर देता है। देन टाइप ऑफ मेमोरी साइज इज डिफाइंड सर्वर हेडर फाइल्स इन stio.h। ओके, देन साइज ऑफ ऑपरेटर इसके अंदर यूज करेंगे। लेट अस सी दैट हियर। We'll do one thing, we'll continue in the next class this thing. Okay, sir. Because actually I had to go some school to drop this daughter, and meanwhile I will take 1 or 2 lecture extra also when you have exams। एग्जैक्ट डेट बताया करो मुझे, कब से हो रहे क्या नहीं। अब 14 से है शुरू। 14 से आया ना? यस सर। तो एक काम करते हैं कि मेरे को एक चीज मेरे को बताना, मैं सीआर से डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा अभी तो मैं जाऊंगा, अभी स्कूल जाऊंगा, तो मैं बाद में एक बार सीआर से डिस्कस करके जो कोई एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करूंगा। ठीक है।